Hey everyone, this is Poco F7 in my hand. Now, currently, its bootloader is unlocked as you guys can see, and currently it is running on the latest HyperOS 2.2. Let me show you. This is currently on HyperOS 2.2. In this video, I'm going to show you how you can install a HyperOS 3 in your device. Complete step-by-step tutorial. First, you need to download this HyperOS 3 mod ROM. This is DiaperOS. The name is funny, but yeah, it is amazing. I have tested. This is one of the best for now. One of the best HyperOS 3. So what you have to do is put your device in a fast boot mode. To put your device in a fast boot mode, you have to press this and go to the reboot. And when your device go in a reboot, you have to press volume down and power button at the same time. 1, 2, 3. Press both buttons at the same time, and your device will go in a fast boot mode. See, as you guys can see, device in fast boot mode. Now what you have to do is connect your device to your computer using data cable. Now the bootloader of this device is unlocked. Now second thing is you have to install ADB or MediaTek driver in your computer. If you don't know how to install it, go watch the video in the channel. To check the drivers are installed or not, you have to type here fastboot devices. When you will type fastboot devices, you will see some code like this, device code and fastboot. It means that fastboot driver is installed and device is connected to your computer. Now what you have to do is, there's link in the description. Go and download this ROM file. This ROM is known as DiaperOS. This device code name is Onyx. This is based on HyperOS 3.04. So अब आपको क्या करना है यहाँ पे, run this file. This is the clean flash and this is just upgrade. I'm gonna do clean flash, Windows install and format data. You have to open this file. Now you have to type buy to do clean flash. Ignore this blue line. Just okay. Now just type buy and press enter. Now the flashing will start and ROM will be flashed in 5 minutes. This is going to take around 5 to 7 minutes. Just wait. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ये पोको F7 है, इसका मैंने बूट लोडर अनलॉक कर लिया है और अब मैं इसमें एक HyperOS 3 का एक मॉड रोम जिसका नाम है डाइपर बॉम्ब ओएस, उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। मॉड रोम्स क्या होते हैं? मॉड रोम्स होते हैं जो स्टॉक HyperOS होते हैं, उनको ही थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके, थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स अनलॉक करके उनको मॉड रोम्स का नाम दे दिया जाता है। तो ये है डाइपर बॉम्ब ओएस. आई एम फ्लैशिंग इन दिस पोको F7. सो यू गाइस हैव टू वॉच द फुल वीडियो, लास्ट तक देखना, क्योंकि बीच में सारे स्टेप्स बताने वाला हूँ. हाउ यू कैन फिक्स डिवाइस इंटीग्रिटी, हाउ यू कैन फिक्स गूगल प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन, GSF, गूगल सर्विस फ्रेमवर्क, ID रजिस्ट्रेशन, सब इसमें कवर करने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो जुड़े रहो. कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे अगर अभी तक आपके डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक नहीं हुआ है तो मैंने उस पर भी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू अनलॉक बूट लोडर. मैं थोड़ा समझा देता हूँ. पहले आपको परमिशंस लेनी पड़ती है Xiaomi कम्युनिटी एप्लीकेशन से. डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड लॉग इन टू योर Xiaomi अकाउंट, एंड रोज़ रात को 9:30 पे वहाँ पे बस एक क्लिक करना है आपको और आपको परमिशन मिल जाएगी. बट द प्रॉब्लम इज़ वो क्लिक हो नहीं पाता है. तो आपको क्या करना है, 9:29 और 58 सेकेंड पर क्लिक करना है विथ हाई स्पीड इंटरनेट. तो आप चांसेस है कि आपका बूट लोडर अनलॉक की परमिशन मिल जाएगी. और अगर आपको परमिशन नहीं मिल रही है, परेशान हो गए हैं, तो टेलीग्राम पे मेरे को कॉन्टैक्ट करो, मैं परमिशंस वाले अकाउंट अवेलेबल करवा दूंगा. उसके बाद वंस यू गेट द अकाउंट, देन यू हैव टू log into your account and unlock the bootloader using your computer, or you can even unlock using another device if you don't have computer. After unlocking the bootloader, all the processes are same. As you guys can see, I'm installing this HyperOS 3 mod ROM.
इस वीडियो को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट फास्ट बूट पे डाल के ये रोम फ्लैश करना। दूसरा पार्ट इस डिवाइस को रूट करना, हमें रूट करना पड़ेगा टू एक्सट्रैक्ट द GSF ID और एंड्रॉयड ID। तो उसके रूट करेंगे। उसके बाद तीसरा पार्ट जहाँ पे हम रूट करने के बाद उस रजिस्टर ID को जाके GSF ID रजिस्ट्रेशन करेंगे। चौथा पार्ट फिर हम इंटीग्रिटी करेंगे, कुछ मॉड्यूल्स फ्लैश करके स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी। उसके बाद आप कोई भी बैंकिंग ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहें। देन यू कैन मेक इट डेली यूज, डेली ड्राइवर फॉर योर डिवाइस। So finally flashing finished. Now let's get back to the device. Now it will reboot to Hyper OS 3. Now we have to root this device using, you can use any method. I'm gonna use here kernel SU next, and you can download this APK from link in the description. वीडियो बहुत भी होती जा रही है। So it is finally booted into HyperOS 3. Now let's set this India. Next, network. Let me add Wi-Fi network. Next, agree. Skip. We can add fingerprint बाद में. सो इट इज़ ऑल सेट। अब हमें क्या करना है, इस डिवाइस को रूट करना है। तो फाइनली HyperOS 3 में आ चुका है। ठीक है, आप सेटिंग्स में आएंगे, माई डिवाइस इन्फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिटेल इन्फॉर्मेशन में HyperOS 3.04 एंड इट इज़ बेस्ड ऑन Android 16 एंड दिस इज़ द डेवलपर नेम फी की वजह है। बट अगर आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो इट विल नॉट वर्क। देख रहे हैं, डिवाइस इज़ नॉट प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफाइड। तो अब हमें इसे सर्टिफाइड करना है। तो अगर ये सर्टिफाइड करना है आपको, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें ना सबसे पहले तो फाइल ट्रांसफ़र पे कर देता हूँ और अब हमें जाना है
इस फ़ोल्डर में इमेजेस फ़ोल्डर दिख रहा है, इसमें जाना है और फिर यहाँ पे आपको दिखेगा एक फ़ाइल जिसका नाम है ये रहा इनिट बूट। इसको हमें करना है कॉपी, रेडमी टर्बो 4 इसमें जाना है, ठीक है। उसके बाद बाहरी पिक्चर फ़ोल्डर के अंदर हम इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पहला क्या कॉपी किया हमने इनिट बूट फ़ाइल, अब हमें क्या करना है, ये एप्लीकेशन है, एक है कर्नल एस नेक्स्ट, एमटी मैनेजर एंड सीन एपीके। सीन ज़रूरी नहीं है पर आप कर सकते हो। अब इन तीनों एप्लीकेशन को भी यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट हो गया। आप देखो रूट करना कैसे है। अ, आपको जाना है पहले फाइल मैनेजर के अंदर, एग्री, फिर हम जाएंगे स्टोरेज में। अब जाएंगे, हमने डाला था पिक्चर्स फोल्डर में, ठीक है। सबसे पहले KSU नेक्स्ट को इंस्टॉल करेंगे। आप कोई दूसरा रूटिंग मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये एमटी मैनेजर डन। अब ये सीन एपी की भी कर लेता हूँ, ठीक है। ये इनिट बूट फाइल है जिससे हम पैच करने वाले हैं। हमें कर्नल एस नेक्स्ट ओपन करना है, यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड। अब हम उसी फाइल पे आएंगे, यहाँ से F7 पिक्चर, ये है वो इनिट बूट फाइल, देख रहे हैं। इसको हम जाके पैच कर देंगे। पैच करने के बाद इसकी स्टोरेज है, स्टोरेज एमुलेटेड 0 डाउनलोड के अंदर, ठीक है। अब हमें ये फाइल जाना है, ये है इंटरनल स्टोरेज डाउनलोड। अभी यहाँ दिखा नहीं रहा, ठीक है। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि हमें डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना पड़ेगा। डिस्कनेक्ट किया एंड आई एम कनेक्टिंग अगेन दिस डिवाइस, ठीक है। डायनेमिक आइलैंड देखो कितना ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है। तो फाइल ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, फिर ये आ गया, इसमें जाना है डाउनलोड के अंदर, ये है वो पैच्ड फाइल। इसको हमें कर लेना है कॉपी। कॉपी करके इसको हमें इस फोल्डर में यहीं पर ही मैं पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं ये पैच वाली इमेज फाइल भी डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके इसको डायरेक्ट फ्लैश कर देना, तो आपको ये पैच वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मेरे को अपने डिवाइस को डालना है फास्ट बूट पे, तो वॉल्यूम अप और पावर बटन सेम टाइम पे दबाऊंगा, फिर रिबूट में डाल दूंगा। अब सेम मेथड करना है आपको। क्या करना है, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन सेम टाइम पे दबाना है, ठीक है। 1 2 3 दोनों को तेज़ की दबा के रखो, और जैसे ये लोगो आएगा ना तो फास्ट बूट पे चला जाएगा। चला गया फास्ट बूट पे। अब आपको वही सेम चीज़ करनी है कंप्यूटर स्क्रीन पे, राइट क्लिक, ओपन इन टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे पहले टाइप करेंगे फास्ट बूट डिवाइसेस। इससे हमें पता जाएगा डिवाइस कनेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे देखो दिखा रहा है डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ लिखेंगे फास्ट बूट फ्लैश, फास्ट बूट फ्लैश। उसके बाद देखिए जो ये फाइल का नाम है ना इनिट बूट, वो आपको लिखना है INIT इनिट, ये आएंगे अंडरस्कोर BWT इनिट बूट स्पेस। आपको ये वाली फाइल उठानी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। इनिट बूट, उसके बाद पेस्ट कर देनी है, ठीक है। अब आपको सिर्फ इंटर करना है। हो गया, डन दिखा रहा है यहाँ पे। अब हम यहाँ टाइप करेंगे फास्ट बूट रिबूट। जैसे देखना मैं टाइप करूँगा फोर डिवाइस रिबूट हो जाएगा। अच्छा ट्रिपल ओ कर दिया मैंने। फास्ट बूट देखना, ऊपर ऊपर मैंने ट्रिपल ओ टाइप कर दिया था। तो फास्ट बूट रिबूट टाइप करेंगे तो आपका डिवाइस रिबूट हो जाएगा। बस इतना ही काम था कंप्यूटर का, अब उसका कुछ काम नहीं है। पर हाँ, यहीं पे ही दिखाता हूँ आपको। आप दूसरा डिवाइस भी कर सकते हो इसके बाद, ठीक है। तो डिवाइस इज रिबूटेड। अब जैसे हम अनलॉक करेंगे और KSU में जाएंगे तो दिखाएगा वर्किंग, इसका मतलब ये रूट वर्किंग है। अब हम इसको सुपर यूजर परमिशन दे सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला इसको
एमटी मैनेजर को परमिशन देना है, ठीक है। सीन अगर यूज़ करते हो आप तो दे सकते हो, मैं करता हूँ बाद में करूँगा, ठीक है। अब देखना, अब ये स्टेप्स बिल्कुल ध्यान से देखने हैं आपको, ठीक है। हाउ टू एक्सट्रैक्ट डिवाइस आईडी, आपको जाना है पहले एमटी मैनेजर में, ठीक है। एग्री करना है, फिर है ना इसको स्किप कर देना। फिर आपको पहले जाना है यहाँ से रूट डायरेक्टरी, फिर यहाँ पे से आपको जाना है, एक फोल्डर होगा डेटा, ठीक है। दोबारा से आपको डेटा फोल्डर में ही जाना है ना। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, GSERVICES, जी सर्विसेज डॉट DB, ठीक है। ये सर्च करेंगे, 3 या 4 फाइल आएगी, ठीक है। बीच वाली फाइल पे क्लिक करना है, फिर ऊपर वाली फाइल पे टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सर्च करना है आपको, यहाँ पे लिखना है ANDROID, एंड्रॉयड। अब आपको एक अंडरस्कोर लगाना है, उसके बाद लिखना है ID। अब आपको ये दबाना है नेक्स्ट, एक बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार जब दबाएंगे आपके पास ये ऐसे ही करके एक कोड आ जाएगा, दिख रहा है आपको, ये यही आपका डिवाइस कोड है, ठीक है। ये है कोड, इसको मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। अब आपको क्या करना है, आप अभी कोई कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, कोई दूसरा डिवाइस यूज़ करते हैं, उसमें आपकी मतलब आईडी लॉगिन होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पे से लिखना है, अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं कोई दूसरे, जिस पे क्रोम इंस्टॉल हो, और ठीक है यहाँ पे लिखना है GSFID रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये पहली वेबसाइट खोल लेनी है, फिर ये किया है ऐसे लिंक आएगा, इस पर क्लिक करना है, तो एक ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी, डिवाइस रजिस्ट्रेशन google/android/अनसर्टिफाइड, ठीक है। अब आपको इस पर कर देना है आई एम नॉट अ रोबोट। अब जो ये नंबर है ना आपको ध्यान से डालना है यहाँ पर, देखिए मैं डालूंगा यहाँ पे से देखते हुए, ठीक है। वहाँ डालूंगा 425986299984, ठीक है। तो अब मैंने ये नंबर लिख लिया है यहाँ से देख के पूरा डिवाइस में से। अब मैं सिंपली यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूँगा, आ गया ना डिवाइस रजिस्टर्ड, तो हमारा डिवाइस यहाँ रजिस्टर हो गया है। अब हमें ना, अब आप तुरंत अगर जाएंगे ना तो ये नहीं चलेगा। अब आपको देखो अभी 2:36 हो रहे हैं ना, अब आपको एटलीस्ट 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, यू हैव टू वेट 5 मिनट्स। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसका डेटा क्लियर कर सकते हो, प्ले स्टोर का क्लियर ऑल डेटा, ठीक है। अब आपको 5 मिनट तो रुकना पड़ेगा, ये टाइम लेता है। और आप क्या कर सकते हो, डेटा क्लियर करके एक बार रिबूट कर देते हैं हम लोग, तब तक मैं इसको परमिशन दे देता हूँ। परमिशन, अदर परमिशन, ये आपको नहीं करना, ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि FPS मीटर यूज़ करता हूँ ना मैं, तो उसके लिए आई हैव टू गिव इट परमिशन। एग्री, प्रो रूट, these are extra things. If you use CNAP you can do it, if you don't use it I don't suggest it। मेरे मैं ये यूज़ करता हूँ FPS मीटर्स के लिए, मॉनिटरिंग के लिए। यहाँ से आप ऐसे करके FPS मीटर, टेम्परेचर मीटर, थ्रेड मॉनिटर, प्रोसेस, बहुत सारी मीटर्स लगा सकते हैं। जैसे ये FPS दिखा रहे हैं ना कितने FPS पे चल रहा है अभी, अभी देखो मैं इसका, देखो 120 पे ही चल रहा है, 120। और अभी मैंने सेटिंग में से सेट नहीं किया है। अगर आप इस पे जाके डिस्प्ले पर जा करके इसको यहाँ पे रिफ्रेश रेट 120 सेट कर दोगे ना, तो ये बहुत स्मूथ हो जाएगा, और भी ज़्यादा स्मूथ, ठीक है। देख रहे हो 120, पहले भी अच्छा ही चला था, ठीक है। तो अब चेक करते हैं प्ले स्टोर चालू हुआ या नहीं, अभी नहीं हुआ, ठीक है। इतने में स्क्रीन लॉक वगैरह सेटअप कर लेता हूँ। ये क्विक सेटिंग है, ये अगर आप इस क्यूरियस अबाउट दिस रोम, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जा करके वो वीडियो देखो, यू गोना लव दिस रोम। मैं स्क्रीन लॉक वगैरह लगा देता हूँ, यही है मतलब फ़ोन, बस मैं लॉक लगा रहा हूँ
Don't wanna show you. ठीक है, ये भी डन हुआ। अब आते हैं चेक करते हैं क्या हमारा ये फिक्स हुआ या नहीं। एक बार रिबूट कर लेते हैं डिवाइस को। हाँ, यूजुअली ये 5 मिनट तो लेता ही है, 5 to 6 मिनट्स। और अगर ऐसे बार बार रिबूट करने के बाद भी 5-10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए और आपका नहीं हो रहा है, तो एक बार और कर लेना डिवाइस आईडी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कई बार क्या होता है हम कोई एक डिजिट गलत कर देते हैं, जिस वजह से नहीं हो पाता फिर। ठीक है, तो कर सकते हो आप। हो गया भाई, हो गया ना। चेकिंग इन्फॉर्मेशन, लेट्स सी हुआ या नहीं। अभी तक नहीं हुआ, तो भाई 5 मिनट तो लगेंगे लगेंगे भाई। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अब आप लॉगिन कर सकते हो अपनी आईडी। मैं जल्दी जल्दी लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने लॉगिन कर लिया। हाँ, यस आई मीन। तो अगर आप अभी इंटीग्रिटीज़ की चेक करेंगे, तो इट कम्स विद ओनली बेसिक इंटीग्रिटी, नो थैंक्स। इंटेग्रिटी चेक। ठीक है, अब चेक करते हैं हम इंटीग्रिटी। अभी ये बेसिक इंटीग्रिटी के साथ आता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं अब लेके चलता हूँ हाउ टू गेट स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी। एक बार वंस यू गेट अ स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी, देन ऑल द बैंकिंग एप्स विल स्टार्ट वर्किंग एंड यू कैन मेक इट योर डेली ड्राइवर। मैं पॉज करता हूँ, क्योंकि अब कंप्यूटर का काम खत्म हो गया, अब हमें डिवाइस पे आना है। तो मैं पॉज करता हूँ। ठीक है, सो फाइनली लेट मी शो यू। स्टिल वी डोंट हैव दिस इंटीग्रिटी। आई हैवंट फ्लैश एनी मॉड्यूल येट। मैंने अभी तक कोई मॉड्यूल फ्लैश नहीं करा है। ठीक है, खाली पड़ा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये कुछ मॉड्यूल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 5 मॉड्यूल्स आपको डाउनलोड करने हैं। ठीक है, इन 5 मॉड्यूल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ जाना है, मॉड्यूल में आना है, प्लस करना है। सबसे पहले ज़ाइजिस्क नेक्स्ट फ्लैश करना है। ठीक है, ज़ाइजिस्क नेक्स्ट के बाद आपको ये प्ले इंटीग्रिटी फॉर्क फ्लैश करना है। ठीक है, फॉर्क करने के बाद आपको ये ट्रिक स्टोर करना है। इसके बाद ये ट्रिक स्टोर ऐड ऑन। ठीक है, ट्रिक स्टोर ऐड ऑन करने के बाद आपको ये लास्ट मॉड्यूल फ्लैश करना है, 25 इंटीग्रिटी बॉक्स। जैसे करके कुछ पॉपअप करेगा, पर इसको इग्नोर कर देना। दिस इज़ इट। और अब आपको अपना डिवाइस रिबूट करना है। दिस इज़ आर्टिफिशियल।
सो डिवाइस इज रिबूटेड। पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, अभी भी हमें इंटीग्रिटी नहीं मिली है, ठीक है। जो बेसिक इंटीग्रिटी वो भी चली गई, ठीक है। अब देखो करना है क्या, अब मेन काम आता है। यहाँ पे आना है आपको, सारे मॉड्यूल देखना है, अगर किसी का अपडेट अवेलेबल हो तो अपडेट कर देना, ठीक है। यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको सिर्फ ये बॉक्स ओपन करना है, ये रन करना है, ये 1 मिनट लेगा। एक्शन कंप्लीट। बस इतना करने के बाद जब हम यहाँ पे आएंगे, अब इंटीग्रिटी चेक करेंगे। सो हमें फाइनली वी गॉट द स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी, दिस इज इट। नाउ यू कैन मेक दिस फोन HyperOS 3 daily use, मतलब you can install any application, banking application, everything will work fine. Either you do, even sometimes WhatsApp use strong integrity too. So now you can use your WhatsApp easily and everything. Thank you so much for watching this video. So this is it. If you're curious about this ROM, how it performs, there's link in the description. Go watch the full detail, in-depth detail video about this. हाँ, बैटरी में ये प्रॉब्लम है, 6500 दिखा रहा है, but its actual capacity is 7500. But this is Chinese build CN ROM, that's why. Ignore it.